students, today I'm going to explain you chapter 3rd of class 7th. The name of the chapter is Climate of India, okay, in which we are going to study about the climate of India, okay. So first understand the difference between climate and weather. So climate is a kind of temperature around your atmosphere which is for a long time, and weather it is this is a short time period temperature, okay. The only major difference between climate and weather is of time difference, okay. Climate is the major time boundage, okay, when that we can consider the permanent amount of temperature around the surrounding, and weather is for particular time, okay. Let's study it one by one so that you get more clarity about it. The word climate is commonly used in everyday conversation, but many people actually mean weather. Okay, that means we usually use the word climate, but we don't even know the difference between climate and weather. Okay, so what's the difference between them is weather refers to conditions when experienced daily or even hourly. Okay, that means it is for 2 or 3 hours maximum, not more than. For example, such as rain has held, okay, so after rain it's obvious that sun will shine more brightly, okay, rainbow can appear. So these are some conditions which happens for short time of period, so we can consider that as a weather, okay. And now climate on the other hand describes a typical weather pattern in a particular area over a long period of time, okay, which is for a long period of time, okay, usually several decades, yani ki several decades so we this time climate is still there, so we consider it as a climate. Many patterns vary widely from one region to another. Season occurs because the earth revolves around the sun, यानी कि seasons क्यों change होते रहते हैं. Why sometimes is summer, why sometimes is winter? Because the earth is revolving around it. So earth rays is not equal at all the places on the earth, so temperature vary. This is how, okay. Each season lasts a few months and repeats every year, यानी कि हर जो season होता है वो हर महीने के बाद खत्म होता है और हर साल के बाद रिपीट होता है, बिकॉज अर्थ रोटेट करती रहती है, सो डेफिनेटली वो अपनी एक प्लेस पर दोबारा वापस आएगी, राइट. जो मेन सीजन्स होते हैं वो स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटम और विंटर सीजन्स होते हैं, ठीक है. वेदर चेंजेस विद द सीजन्स, यानी कि वेदर सीजन के साथ भी चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, summer can be hot and dry while the monsoon season brings humidity and rain, okay. समर में गर्मी हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, जबकि मानसून सीजन में ह्यूमिडिटी और बारिश दोनों हो सकती है, ठीक है. इसी को वेदर बोला जाता है, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहता है, ठीक है. यानी कि ये क्लोजली लिंक्ड होता है. वहाँ का क्लाइमेट कैसा है वैसे वहाँ का वेदर होता है. ज़्यादातर पार्ट्स में देयर आर 4 मेन सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. बट इन इंडिया देयर इज एन एडिशनल सीजन विच इज मानसून सीजन और रेनी सीजन, ओके. दैट ब्रिंग्स रेनफॉल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर, ठीक है, जो कि साल के स्पेसिफिक टाइम के लिए रेनफॉल कराता है, ठीक है. It many places the weather changes during the year, यानी कि बहुत जगह पे साल में सीजन चेंज हो जाता है, जिसको हम सीजन कंसिडर करते हैं, ठीक है. If we observe the world around us, we can see that humans, plants, animals all follow the rhythm of the winters or season, यानी कि हर प्लांट्स, एनिमल्स, यानी कि दुनिया में सभी एक रिदम फॉलो करते हैं, जैसे कि सीजन्स हर कुछ टाइम पीरियड के बाद समर आता है, फिर विंटर्स आते हैं, फिर ऑटम्स आते हैं. इसी तरह से सब एक टाइम पीरियड को फॉलो करते हैं. द क्रॉप्स वी ग्रो, द फूड वी ईट एंड द क्लोथ्स वी वेयर ऑल चेंजेस विद द सीजन, यानी कि जो हम पहनते हैं, जो हम खाते हैं, सब सीजन के साथ चेंज होता रहता है. यानी कि सभी एक टाइम पीरियड, एक टाइम इंटरवल फॉलो कर रहे हैं, एक रोटेशन फॉलो कर रहे हैं, जो कि हर साल रिपीट होता रहता है, ओके. अलग अलग जगह पे ट्रीज और श्रब्स भी ब्लूम करने लग जाती है, जहाँ पर बेसेंटा यानी कि स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है, ठीक है. जहाँ पर शराद बोलते हैं ना, शराद आ गए, यानी कि ऑटम सीजन्स आ गए. सम में शेड देयर लीव्स और चेंज कलर, ठीक है, कुछ अपनी लीव्स शेड करते हैं, कलर चेंज करते हैं. दीज आर द symptoms which tell us which season is going on. During Sisira, when some animals grow thick fur to stay warm in the cold, okay. So these are some symptoms which we observe every year at particular time, which everyone observes, which everyone does to protect themselves from weather, okay. So there are more 4 seasons, we have already discussed about it. Let's read about it one by one. So spring starts when day and night are the same length, यानी कि जब डे और नाइट सेम लेंथ के होता है, यानी कि जितने टाइम के डे हो रहा है उतने ही टाइम में नाइट हो रहा है, इक्वल अमाउंट है, ठीक है. यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 24 घंटे होता है दिन में, ठीक है, तो 12 घंटे दिन रहेगा और 12 घंटे नाइट रहेगी, ठीक है. उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्प्रिंग सीजन.
द वेदर गेट्स वार्मर एंड सनियर, जो वेदर होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सनी होता है, इनके सन बहुत ज़्यादा शाइन करता है। ट्रीज एंड प्लांट्स स्टार्ट टू ग्रो, मैनी एनिमल्स हैव देयर बेबीज इन स्प्रिंग्स, यानी कि ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे लोग एनिमल्स अपने बेबीज़ को इस टाइम पर बॉर्न करते हैं। समर सीजन होता है जो बहुत हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक समर सीजन ही रहता है। इन द नॉर्थ दिस इज ऑन 21 जून, नॉर्थ में 21 जून के आसपास, और समर में यूजुअली वार्मेस्ट और सनीस्ट टाइम होता है पूरे साल का। फ्रूट भी यहाँ पर ट्रीज और प्लांट्स में फ्रूट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और जो यंग एनिमल्स होते हैं वो और ज़्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं सीजन में। ऑटम स्टार्ट्स व्हेन द डे एंड नाइट आर द सेम लेंथ अगेन, यानी कि ऑटम सीजन्स भी यही होता है जब सेम डे और नाइट सेम रहती हैं, और ऑटम में जो लीव्स होती हैं वो अपना कलर चेंज करती हैं, ट्रीज से लीव्स गिरने लग जाती हैं और कुछ एनिमल्स फूड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सर्दियों के आने से पहले, ठीक है। विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है पूरे साल का, ठीक है, यानी कि नॉर्थ में 21 दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। The winter is colder in some places. There is lots of rain, यानी कि विंटर में ठंड रहती है और बहुत जगह पर स्नो होती है बहुत ज़्यादा। प्लांट्स और ट्रीज स्टॉप ग्रोइंग, प्लांट्स और ट्रीज ग्रो होना बंद कर देते हैं। सम एनिमल्स लाइक बैट्स एंड बियर्स फाइंड प्लेसेस टू हाइड एंड स्लीप, दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, यानी कि कुछ एनिमल्स जैसे कि बैट्स और बियर्स वो अपनी छुपने की जगह ढूंढ लेते हैं, वहाँ पर सोते हैं। किस सीजन में, विंटर सीजन में, ठीक है, जिसको हिबरनेशन बोला जाता है। यूजुअली जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, ठीक है, बट कुछ डिकेड्स में साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो जल्दी जल्दी चेंज होने लगा है, ठीक है। रिसर्च शोज दैट मैनी ऑफ दीज चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों टेम्परेचर जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो नेचर में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वेदर इट इज़ गुड और बैड, उसकी वजह से डिकेड्स में और मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया में किस किस तरह का टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है, कहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत तरीके के वेजिटेशंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरीके के वेदर एक्सपीरियंस किए गए हैं, ठीक है, उसकी लोकेशन और उसकी सी लेवल के हाइट को देखते हुए, ठीक है। जैसे कि नॉर्थर्न पार्ट में हम सभी जानते हैं हिमालयाज होते हैं, ठीक है, उनके पास एल्पाइन क्लाइमेट होता है, ठीक है। इसका मतलब एल्पाइन क्लाइमेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा स्नोई विंटर्स और बहुत ज़्यादा कोल्ड समर्स जो होते हैं उनको एल्पाइन क्लाइमेट बोला जाता है, जो कि आपको माउंटेन्स पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, ठीक है। यहाँ पर लोग बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो लोग मोटे कपड़े पहनेंगे सो दैट दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ओके। जस्ट बिलो द हाई माउंटेन्स से नीचे हिली एरियाज होते हैं, ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये ठंडा होता है, ठीक है, मतलब फ्रीजिंग नहीं होता जैसे कि हिमालयाज पे था, बट यहाँ पर भी काफ़ी ठंडी होती है, ठीक है। और समर्स बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होती है और समर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आप कह सकते हो। दैट्स वाई हिल स्टेशंस आर लोकेटेड हियर, इसलिए यहाँ पर हिल स्टेशन है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। हमने देखा समर्स आर प्लीजेंट, ओके, इसलिए यहाँ पर हिल स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पर लोग टूरिस्ट वगैरह विजिट करने के लिए भी आते हैं। पीपल फ्रॉम हॉट प्लेस विजिट दीज प्लेसेज इन समर टू एंजॉय द कूलर वेदर, ओके। नॉर्थर्न प्लेन्स जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल होता है, ठीक है, यानी कि समर्स बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स क्वाइट कोल्ड होते हैं, ठीक है। इन एरियाज़ को परफेक्ट बोला जाता है वीट को ग्रो करने के लिए, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इसलिए यहाँ पर वीट बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है, वीट राइस जैसे क्रॉप्स, ठीक है। टू द वेस्ट इन प्लेसेस लाइक राजस्थान, वेस्ट में राजस्थान जैसी प्लेसेस जो कि थार डेजर्ट है, यानी कि थार डेजर्ट जहाँ राजस्थान में है, हम सभी जानते हैं, वहाँ का बहुत ज़्यादा एरिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। इट गेट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट, ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन के टाइम पर, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है रात के टाइम पर, और बहुत यहाँ पर कम बारिश होती है। हम सभी जानते हैं डेजर्ट से बहुत कम बारिश होती है। पीपल हियर हैव स्मार्ट वेज टू कलेक्ट एंड सेव वाटर, यानी कि यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा स्मार्ट वेज यूज़ किए हैं अपने वाटर को बचाने के लिए, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल एरियाज जैसे कि गोवा हो गई, केरला हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती हैं मानसून के टाइम पे, और जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट होता है, मतलब यहाँ का बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया की साइड आते हैं, ठीक है। दिस क्लाइमेट इज गुड फॉर ग्रोइंग राइस एंड स्पाइसेस, यानी कि राइस और स्पाइसेस उगाने के लिए क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड डेक्कन प्लेटू, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको डेक्कन प्लेटू बोला जाता है। यहाँ का सेमी एरिड क्लाइमेट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, माइल्ड विंटर्स होते हैं, ठीक है, और रेनफॉल ठीक ठाक होती है बारिश के मौसम में। ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साउथर्न पेनिनसुला में द क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल, जो क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब है जो सन की रेज है वो डायरेक्ट इन पर पड़ती है,
ओके, विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड, विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, रीजन्स जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म सीजन होता है, बहुत ज़्यादा सूखा होता है, ड्राई होता है, ठीक है, क्योंकि जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, और मानसून वीड्स पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। अब फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, कहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा ये हमने पढ़ लिया, बट वहाँ का क्लाइमेट वैसा क्यों होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस मीन्स द यूजुअल वेदर इट हैज़ ओवर लॉन्ग टाइम, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट का मतलब है उनका यूजुअल वेदर जो लॉन्ग टाइम तक रहता है। ओके, डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट, हर जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है। वी डिस्कस्ड इन बिगनिंग ऑफ द चैप्टर जो मेन फैक्टर्स है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो क्या है। सबसे पहले तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर लैटिट्यूड। ओके, देखो मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ, डिस्टेंस ऑफ द लैटिट्यूड से इनका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, और यहाँ पर आपकी सन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सन की रेज को कैप्चर करने की कोशिश करें, अगर यहाँ पे इस तरह से सन की रेज आएंगी तो वो डायरेक्टली किस पे पड़ेंगी, ये अर्थ हो गई, ये सन हो गई, ठीक है। तो इसकी जो रेज है वो डायरेक्टली मिड पार्ट ऑफ द सेंटर में पड़ेगी, यानी कि अर्थ का जो मिडिल पार्ट है यहाँ पे ज़्यादा पड़ेंगी, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पड़ेंगी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो सन की रेज है वो डायरेक्टली अर्थ के मिडिल पार्ट पर पड़ती है, ठीक है, जिसमें इंडिया भी आता है, इसलिए इंडिया का साउथर्न पार्ट बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, ठीक है। आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती हुई जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इक्वेटर से आपका डिस्टेंस कैसा ही मैटर करता है। इक्वेटर मिड आपको पता होगा इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है, इसलिए जो डायरेक्टली वहाँ पर फॉल करेंगे वो एरिया ज़्यादा गर्म रहेंगे, ठीक है। जैसे कि इंडिया का कन्याकुमारी एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट है नीचे साउथ में इंडिया के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है इक्वेटर के और गर्म है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और जो ऊपर नीचे है वहाँ पर फ्रिजिड एरियाज रहते हैं, ठीक है। और हाइट अबव सी लेवल एल्टीट्यूड, इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो हायर प्लेसेस है जो वो ठंडी होती है, ठीक है, दैट्स वाई माउंटेन रीजन्स लाइक हिमालयाज आर कोल्ड इवन थो दे मे क्लोज टू द हॉट एरियाज, ठीक है, यानी कि इस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे माउंटेन्स है, ये सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है, यानी कि जो माउंटेन्स है वो हॉट एरियाज के पास है, यानी कि माउंटेन्स यहाँ पर कहीं पड़ता है तो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं और जिससे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एल्टीट्यूड मैं बोल सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अर्थ का सर्फेस है तो आप यहाँ से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा सर्दी होती रहेगी, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो एल्टीट्यूड पर भी डायरेक्टली ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, यानी कि सी से उसका डिस्टेंस कैसा है, ठीक है। तो जो प्लेसेस सी के पास है वो माइल्डर क्लाइमेट, नॉट टू हॉट, वो ज़्यादा ठंडी नहीं होती, ज़्यादा कोल्ड नहीं होती, ठीक है, जिससे सी जो है ठंडा रहता है समर्स में और गर्म रहता है विंटर्स में। बट प्लेसेस फार फ्रॉम द सी हैव मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि जो सी से बहुत दूर है उनके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है, जैसे कि मुंबई और नागपुर जो है वो सेम एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, यानी कि वो सेम हाइट पर लोकेटेड है अर्थ से, आप कह सकते हो, बट देयर क्लाइमेट्स आर क्वाइट डिफरेंट, पर उनके क्लाइमेट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि वो सी लेवल से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। मुंबई सी के पास है इसलिए यहाँ का ठंडा क्लाइमेट है, और जो दूसरी तरफ नागपुर बहुत दूर है कोस्ट से, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो सी के जितना पास रहेंगे वहाँ पर आप उतनी ज़्यादा गर्मी रहती है। ये आपका तीसरा फैक्टर हो गया, ठीक है, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फोर्थ फैक्टर हमारा होता है विंड्स। अब विंड्स कैसे हेल्प करता है, तो विंड्स बहुत ज़्यादा वार्म और कोल्ड एयर्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ठीक है, विंड्स फ्लो करती रहती है, तो जो वार्म विंड्स होती हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं आपके विंड्स को लेके जाते हैं वेस्ट से, ठीक है, यानी कि वेस्ट से ये विंड्स को अलग अलग पार्ट्स में लेकर जाते हैं, ठीक है। ये जो विंड्स है ये हॉट डेजर्ट्स ऑफ अरेबियन सी, अफगानिस्तान, ब्रिंगिंग ड्राई एंड हॉट एयर दैट कॉजेस हीट वेव्स इन समर, ठीक है, यानी कि इधर से आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर हमारा इंडिया है इधर से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जैसे स्टेट्स अवेलेबल हैं, इसलिए वेस्ट से जो विंड्स आती हैं इस डायरेक्शन में वो अपने साथ बहुत ज़्यादा हॉट, वार्म और अलग अलग टेम्परेचर की विंड्स लेके जाती हैं, ठीक है। इसलिए सर्दियों में जो कोल्ड विंड्स होती हैं वो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट रहता है क्योंकि वो वहाँ से हॉट विंड्स लेकर आती हैं, ठीक है। और सर्दियों में कोल्ड विंड्स आती हैं, हिमालयाज ब्लो इनटू नॉर्थर्न प्लेन्स लीडिंग टू कोल्ड वेव्स, यानी कि ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड, वो जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड्स आती हैं, ठीक है, यहाँ से कोल्ड विंड्स आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, ठीक है। विंड्स ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यानी कि जो विंड्स यहाँ से आ रही है वो ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने बताया यहाँ से बहुत ज़्यादा विंड्स आ रही हैं, हॉट विंड्स आ रही हैं, ठीक है, जो कि इन एरियाज़ को भी अफेक्ट कर रही है कि यहाँ से विंड कैसी फ्लो हो रही है, ठीक है।
और ये ह्यूमिडिटी और रेनफॉल को भी अफेक्ट करती है। कैसे? विंड्स फ्रॉम डेजर्ट्स आर ड्राई, जो डेजर्ट्स की विंड्स होती हैं वो सूखी होती हैं, बट विंड्स फ्रॉम द सी कैरी मॉइस्चर, लेकिन जो सी जो विंड्स कैरी कर रही होती है उनमें मॉइस्चर होता है, उनमें वाटर के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो मॉइस्ट विंड्स होती हैं ये रेन को लेके आती है व्हेन दे ब्लो ओवर द लैंड। सून वी विल लर्न मोर अबाउट मॉनसून विंड्स दैट ब्रिंग अ लॉट रेन टुडे। ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है कि मॉइस्चर सी से जो विंड्स के पार्टिकल्स आते हैं वो कैसे रेन क्रिएट करते हैं, बट हाँ आपको आइडिया होना चाहिए कि विंड्स की वजह से कि कैसे विंड फ्लो कर रही है वो रेनफॉल और ह्यूमिडिटी उस पर डिपेंड करती है। अगर गर्म विंड्स यानी कि ऐसी विंड्स फ्लो करेंगी जिनमें वाटर पार्टिकल्स है, ह्यूमिडिटी है, तो डेफिनेटली वो रेनफॉल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल आपके लिए बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज आल्सो द फिफ्थ फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द क्लाइमेट। जो टोटलिटी ऑफ फिजिकल सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? जो टोटल फिजिकल सरफेस फीचर है किसी भी एरिया यानी कि पूरे एरिया का फिजिकल सरफेस फीचर कैसा है, वो फिजिकली अपीयरेंस कैसी है उसकी, उसको टोपोग्राफी बोला जाता है। दिस में इंक्लूड माउंटेन्स, हिल्स, वैली, स्लोप्स, ये सब चीज़ें टोपोग्राफी में आती हैं। जो शेप है लैंड की, यानी कि जो फिजिकल फीचर है लैंड और एरिया का, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसाइड करने में कि क्लाइमेट कैसा हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल जो हिमालयाज और कराकोरम रेंजेस है वो हेल्प करते हैं आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को ठंडी ठंडी हवाओं से बचाने के लिए, जो कि डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया से आ रही है। ठीक है, बट जो थार डेजर्ट्स है वो मोस्टली फ्लैट होते हैं, यानी कि उनकी लैंड बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है, इसलिए यहाँ पर कोई नेचुरल बैरियर नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और सूखे होते हैं और ईजिली वहाँ से ब्लो कर जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा गर्म बना देते हैं। यानी कि अगर आपका लैंड बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है तो वहाँ से जो विंड्स आएंगे वो उसको कोल्ड कर देंगे, बट अगर वो बिल्कुल फ्लैट है तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा उसके आसपास, इसलिए वो उस एरिया को हॉट बना देती हैं। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मॉनसून्स। ठीक है, तो हमने 5 फैक्टर्स पढ़ लिए जिन पर क्लाइमेट डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, सी से कितना दूर है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इक्वेटर से कितना पास है, कितना दूर है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है, टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है और फाइनली विंड्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम मानसून्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानसून्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, जो रिवर्स होती है वो पूरी पानी से भर जाती है। ठीक है, द सॉइल बिकम्स वेट, द क्रॉप्स ग्रो एंड नेचर फ्लरिशेस, यानी कि इस टाइम पे पूरे रिवर्स भर जाती हैं पानी से, क्रॉप्स फ्लरिश हो जाती है, नेचर फ्लरिश हो जाता है। ठीक है, और क्रॉप्स रेडी होती है सो करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी तो हम सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सीज़न हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मानसून फॉलो ईयरली पैटर्न, हर साल एक ईयरली टाइम पीरियड में ही आता है। दे हैपन बिकॉज लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन द ओशन। ये अच्छा, मानसून होता क्यों है? क्योंकि लैंड गर्म हो जाती है और ठंडी हो जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, लैंड का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता कॉन्स्टेंट टाइम के लिए, ओशन से भी ज़्यादा जल्दी लैंड ठंडी और गर्म हो जाती है, इसलिए मानसून सीजन होता है। ठीक है, समर्स में जो एशिया का लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वहाँ पे प्रेशर एरिया भी बहुत कम होता है उसके ऊपर। ठीक है, एशिया की बात की जा रही है। विंड्स मूव फ्रॉम द कूलर ओशन हाई प्रेशर टू द हॉटर लैंड लो प्रेशर, यानी कि जो विंड्स होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। अब पूरे एशिया की कहानी है तो इंडिया की भी कहानी होगी, इंडिया एशिया के अंदर ही आता है। तो ये जो विंड्स है बहुत सारा मॉइस्चर अपने साथ कैरी करते हैं। ठीक है, जो कि बाद में रेन बन जाती है। जब वो मतलब बहुत सारा मॉइस्चर विंड्स जब वार्म लैंड से मिलती है तो वहाँ पर रेन फॉर्म हो जाती है। इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि जो मानसून है वो रेनी सीजन को ही हम इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि मानसून सीजन की वजह से बारिश होती है इसलिए। ठीक है, विंटर्स में जो पैटर्न होता है मानसून का वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द ओशन, सो द लैंड बिकम्स अ हाई प्रेशर एरियाज and ocean remains warmer with the lower pressure. As a result, wind now blow from the land to sea, bringing dry weather to most of the Asia. ठीक है, यानी कि जो ऊपर कहानी पड़ी उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर जो मानसून होता है वो एक सीजनल विंड है, यानी कि सीजनल विंड्स पे डिपेंड करती है। Heavy rainfall of many parts of India, the monsoon rains usually start from the southern tip in early June and slowly move north. यानी कि जून के स्टार्टिंग में से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और नॉर्थ तक ये जो विंड से फ्लो करती हुई जाती है। ठीक है, मिड ऑफ जुलाई के टाइम पे पूरा कंट्री जो है मानसून से कवर्ड हो जाता है। ठीक है, यानी कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। बट दिस डज नॉट हैपन स्मूथली, यानी कि स्मूथली नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर जगह कॉन्स्टेंट है, वेरिएशंस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस जो होती हैं वेस्टर्न कोस्ट पर वो ब्लॉक हो जाती है रेन बियरिंग विंड्स की वजह से, यानी कि जो विंड्स आ रही हैं उनकी वजह से रेन क्रिएट नहीं हो पाती क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है,
दैट्स वाई द वेस्टर्न साइड ऑफ घाट्स गेट अ लॉट ऑफ रेन, इसलिए जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, क्योंकि वहीं पर ही बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती हैं रेन बेयरिंग विंड्स की वजह से। ठीक है, जबकि जो डेक्कन प्लेटोज होती हैं ईस्टर्न साइड में, वहाँ पर कम रेनफॉल होती है और कभी कभी होती नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं। इस पीरियड को बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, बिकॉज जो विंड्स कम फ्रॉम द साउथ वेस्ट, यानी कि मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ऐसा कुछ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा विंड्स आ रही हैं। ठीक है, रेन बियरिंग विंड्स। ठीक है, रेन बियरिंग विंड्स का मतलब है वो विंड्स जिसमें पानी के मॉइस्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो रेन बियरिंग विंड्स यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई है इन एरिया में, राजस्थान पंजाब जैसे एरिया में, इसलिए यहीं पर ज़्यादा बारिश हो जाती है। और जो इधर का पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आती, ड्राई स्पेल्स बन जाते हैं कई बार। ठीक है, एज विंटर नियर्स द विंड चेंजेस डायरेक्शन एंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी। ठीक है, जैसे कि विंटर पास आने लग जाता है तो जो विंड है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और लैंड से सी की तरफ ब्लो करने लगती है। ये ड्राई विंड्स होती हैं जो कि ठंडी वेदर लेकर आती हैं साउथ इंडिया में। बट कुछ विंड्स होती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल से पास करती है और थोड़ा सा मॉइस्चर ले लेती है, जिसकी वजह से बारिश हो जाती है ईस्टर्न पार्ट्स में भी और इंडिया के साउथर्न पार्ट्स में भी। ठीक है, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहे हैं इंडिया में। ठीक है, ठीक है, और इस तरह से सब जगह फैल जा रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि क्लाइमेट एंड अवर लिव्स। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट के बेसिस पे हमारी लिव्स किस तरह से अफेक्ट करती हैं। तो अवर लिव्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द क्लाइमेट, हमारे रहने का तरीका हमारे आसपास के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल कपड़े और कल्चर, मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स अलग अलग सीजन और फार्मिंग एक्टिविटीज से कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्लाइमेट इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो क्लाइमेट का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इकोनॉमी में। कैसे देखते हैं, वी हैव हियर द टर्म मॉनसून फेलियर। ठीक है, यानी कि मॉनसून फेल हो जाते हैं। अच्छा, ये आप थोड़ा सा लॉजिकली भी समझ सकते हो कि मॉनसून कैसे हमारी इकोनॉमी को, क्लाइमेट कैसे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। हमने भी पीछे एग्जाम्पल पढ़ा मॉनसून का। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हम मॉनसून को रेनी सीजन ही बोल देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से बारिश होती है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली मॉनसून सीजन अगर नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, अच्छे से विंड्स मतलब नेचर अपना बैलेंस नहीं शो करेगी, तो रेनफॉल नहीं हो पाएगी। रेनफॉल नहीं होगी, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगी तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रीज़न मिल जाता है कि सीज़न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ मानसून सीज़न की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सभी सीजन्स अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी कि ये इनफ नहीं है कि मानसून सीजन में यानी कि सिर्फ मानसून सीजन इनफ नहीं है। दिस हैपन्स फार्मिंग सफर्स, यानी कि मानसून अच्छे से नहीं होगा तो फार्मर्स तो सफ़र करेंगे। अक्सर वुमेन्स हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फाइंड वाटर। अब आप खुद सोचो, अगर पानी नहीं होगा तो वुमेन्स को कितना ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा वाटर लेने के लिए। ठीक है, बहुत सारे फार्म वर्कर्स होते हैं जो अपने विलेजेस को छोड़ देंगे और सिटीज़ में जाएंगे क्योंकि जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो उनकी क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली दे विल सर्च सम अदर जॉब फॉर देयर लिविंग। फूड आइटम्स जो होते हैं जिसकी ग्रेन वेजिटेबल्स, ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे क्योंकि क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी, तो जो वाटर पे डिपेंडेंट है जो क्रॉप्स, वो ग्रो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं किसी चीज़ के। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा गुड वेदर और वाटर पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, देखो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज़ किस पर डिपेंडेंट होती है, रॉ मटेरियल्स से। ठीक है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है वो तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर एग्रीकल्चर का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो चुका है, तो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी, तो कंट्री का इकोनॉमी तो ऐसे ही गिर गई। ठीक है, तो आप बहुत सारे फैक्टर्स देख सकते हो जिसकी वजह से डायरेक्टली कंट्री की इकोनॉमी क्लाइमेट्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं कि क्लोजली क्लाइमेट पीपल्स इकोनॉमिक कंडीशंस आर लिंक्ड, यानी कि पीपल्स की इकोनॉमिक कंडीशंस क्लाइमेट पर डिपेंड कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब नेचुरल डिजास्टर्स आ जाता है, जैसे कि फ्लड हो जाता है, ड्रॉ आ जाता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों की इकोनॉमी डायरेक्ट ख़राब हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है नेचर का, जिसकी वजह से इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा कंट्री की लॉस हो जाता है। ठीक है, क्लाइमेट और डिजास्टर्स, क्या क्या डिजास्टर्स होते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स की वजह से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं। ठीक है, ये जो डिजास्टर्स होते हैं पीपल की लिविंग को अफेक्ट करते हैं, उनके होम्स को अफेक्ट करते हैं और डेफिनेटली कंट्री के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लड।
ठीक है। तो फ्लड तो हम सभी जानते हैं कि फ्लड क्या होता है, जब सूखा पड़ जाता है, बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तो सब जगह सूखा पड़ जाएगा। तो हम अभी पहले भी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं जब मैंने मानसून के बारे में बताया कि अगर सूखा पड़ गया है सब जगह तो कितने ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल एंड ग्राउंड कैन नॉट सोक अप ऑल द वाटर, ठीक है, यानी कि फ्लड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सूखा नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब खुद सोचो, या तो बारिश नहीं हो रही है तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो फार्मर्स को इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो लैंड पे पानी भर जाता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, क्योंकि जो लैंड है वो वाटर को सोक नहीं कर पा रही है। कभी कभी रिवर्स या लेक्स बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है, यानी कि इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है कि वो जो वाटर है वो रिवर्स और लेक से बाहर आ जाता है और लैंड में स्प्रेड करने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिससे बैंक्स ब्रेक हो सकते हैं। फ्लड्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है मानसून सीजन में। ठीक है, हमने डिस्कस कर चुके हैं मानसून सीजन में फ्लड्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश और असम। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइकली हर साल फ्लड फेस की जाती है। ठीक है, ग्लेशियर फ्लड्स इन द हिमालयाज, हिमालयाज में ग्लेशियर फ्लड्स होती हैं। इन द हिमालयाज रीजन फ्लड्स कैन हैपन व्हेन ग्लेशियर लेक्स ओवरफ्लो, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो माउंटेन्स की सुना है वो मेल्ट होकर वाटर रिवर्स के थ्रू फ्लो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ओवरफ्लो करेंगे तो ग्लेशियर फ्लड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये जो लेक्स हैं ये ग्लेशियर्स के मेल्ट करने से बनते हैं। ठीक है, एंड बैक बाय वॉल्स ऑफ रॉक्स एंड आइस। ठीक है, और रॉक्स और आइस के मिक्सचर से बनते हैं, ये टूट के गिरते रहते हैं और बनते रहते हैं। ये ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है। जो प्रेशर है उसकी वजह से वाटर कैन सडनली ब्रेक थ्रू और दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर बर्स्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा बारिश होती है कि सडनली ब्रेक होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर बर्स्ट क्रिएट होता है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और विलेजेस, रोड्स और इवन लिव्स को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ठीक है, जैसे कि 2000 उत्तराखंड फ्लड केस आपने देखा होगा, कितनी तबाही हुई थी उससे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव साइक्लोन्स। ये एक पावरफुल स्टॉर्म है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन्स यहाँ पर फ्लो होती हैं। साइक्लोन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी विंड और हैवी रेन फ्लो होने लग जाती हैं। ठीक है, ओवर द सी एंड कैन क्लोज फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शंस व्हेन दे रीच लैंड, और जब वो लैंड तक आती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ होती है, आप समझ सकते हो। ठीक है, विंड्स कलेक्ट होती है मॉइस्चर से, दे फॉर्म क्लाउड्स एंड रोटेट इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ डिप्रेशन, दिस क्लाउड सेंटर दिस इज कॉल्ड आई ऑफ साइक्लोन। यानी कि विंड जो है मॉइस्चर को कलेक्ट करने लगती है अपने साथ, जब बारिश होती है तो मॉइस्चर को कलेक्ट करने लगती है और वो क्लाउड्स फॉर्म करती है। ठीक है, जो कि मतलब साइक्लोन बेसिकली यही है कि बहुत ज़्यादा विंड्स फ्लो कर रही हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग और हैवी विंड्स फ्लो कर रही है कि वो अपने साथ जो भी उसके वे में आता है वो सब कुछ तबाह करती हुई चलती है। तो डेफिनेटली इससे भी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। ठीक है, लैंडस्लाइड्स क्या होता है, जब जो अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स है उनका मूवमेंट खराब हो जाता है। ठीक है, जब जो रॉक, सॉइल और मड है ये सडनली स्लाइड डाउन अ लोप, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगता है। दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ हैवी रेन, अर्थक्वेक्स और इवन वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, यानी कि जब रेन होती है, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं। लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है हिल एरियाज में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न घाट, स्पेशली मानसून सीजन के टाइम पे। ठीक है, जो लैंडस्लाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं ह्यूमन एक्शंस की वजह से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, हाउसेस बना रहे हैं। ठीक है, और मतलब वो डिफोरेस्टेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, और क्योंकि हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं और नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, इस वजह से नेचर भी अपना रूप दिखा रहा है, आप कह सकते हो कि इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फ्लड, ड्रॉ और ऐसी सिचुएशंस आपको देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर्स। तो फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं पूरे फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स में। ठीक है, जिन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक जगह पे आग लगी है तो फॉरेस्ट फायर्स का मतलब है पूरी जगह पे बहुत ज़्यादा क्विकली फायर स्प्रेड हो जाती है। ये बहुत अक्सर होता है जब वेदर बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है, ड्रो। ठीक है, ड्रो मतलब सब जगह सूखा पड़ गया और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो होने लग जाती है। समटाइम्स दे आर कॉज्ड बाय ह्यूमन केयरलेसनेस, लाइक थ्रोइंग अ बर्निंग मैच और लीविंग अ कैंप फायर अनअटेंडेड, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की केयरलेसनेस की वजह से भी ये होता है बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट बर्न्स। इसमें क्या होता है, अगर किसी ने माचिस को ऐसे ही फेंक दिया, यानी कि हल्की सी भी आग लगने की देर है, बस छोटा सा आग की तिल्ली लग जाए, उसके बाद पूरे फॉरेस्ट में बहुत जल्दी आग लग जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट जैसे एरियाज में। दीज फायर्स कैन डिस्ट्रॉय लार्ज फॉरेस्ट एरियाज, यानी कि बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज को ये तबाह कर सकते हैं, और फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ का भी बहुत ज़्यादा हार्म होता है।
और इसी के साथ साथ जब फॉरेस्ट बर्न होता है, पूरे जंगल में आग लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। आप सभी को पता है, अगर हम बर्निंग क्रिएट करेंगे तो उसके धुएं से ओजोन लेयर को प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पूरा पॉल्यूशन होता है। इवन फोर्स पीपल यानी कि इवन फोर्स पीपल टू लीव देयर होम्स, यानी कि जो लोग जंगल के पास रहते हैं उन्हें फोर्सफुली अपना घर छोड़ना पड़ता है। दे कोज बोथ इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डैमेज, जैसे इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक दोनों तरीके से इकोनॉमी को हार्म होता है। क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है बड़े और लॉन्ग टर्म चेंजेस जो अर्थ के क्लाइमेट में होते हैं, ठीक है। दिस कैन इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, वेदर पैटर्न ओवर मेनी ईयर्स। और डिस्टेंट पास्ट क्लाइमेट चेंज हैपेंड बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस, यानी कि क्लाइमेट हमने देखा किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से हमारे इकोनॉमीज को और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज नेचुरल रीजंस की वजह से होता है, ठीक है। सिंस द 1800 मोस्ट क्लाइमेट चेंज बीन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग कोल, यानी कि 1800 के टाइम पे, 1800 सेंचुरी के टाइम पे जो नेचुरल चेंज हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। हम ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा केयरलेस चीज़ें की है, जैसे कि कॉल को केयरलेसली जलाया है, ऑयल्स, गैस और फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट किया है, मतलब डिफोरेस्टेशन किया है, एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट किया है, वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट किया है, और रिसोर्सेज को ब्लाइंडली यूज़ किया है, ठीक है। दीज चेंजेस आर अफेक्टिंग अवर प्लानट इन सीरियस वे एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट। और इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे प्लानट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव चेंजेस आए हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जनरेशन ये जाने कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमें कैसे इसको करना चाहिए। जो बर्निंग फॉसल फ्यूल्स है, यानी कि हम फॉसल फ्यूल्स जलाते हैं, उससे भी इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। द अर्थ हैज़ अ नेचुरल वे ऑफ कीपिंग इटसेल्फ वार्म, यानी कि अर्थ एक अपना नेचुरल वे है जो कि उसको वार्म रखता है। कुछ गैस एयर में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सन से हीट को ट्रैप कर लेती हैं और प्लैनेट को वार्म रहने में हेल्प करती है, जिससे क्लाइमेट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रहने के लिए सुटेबल हो, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। पर जब ह्यूमंस फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे कि कॉयल, ऑयल, गैस फैक्ट्रीज में, ठीक है, या फिर कार और इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और बाकी गैसेस रिलीज होती है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गैस ट्रैप होने लग जाती है, ठीक है, जिससे अर्थ बहुत तेज़ी से गर्म होती चली जाती है और बहुत ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग और बोला जाता है। एंड इट्स चेंजिंग द क्लाइमेट इन हार्मफुल वेज, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे अर्थ को वार्म रखने के लिए हेल्पफुल है, वो हमारे लिए कॉज बनता जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर एक्स्ट्रा ट्रैप हो रहा है। इंडिया में जैसे कि 2025 की स्टार्टिंग में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर वार्मर टेम्परेचर्स है, नॉर्मली कि जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर है। देन मेड विंटर शॉर्टर एंड माइल्डर, यानी कि इससे सर्दियाँ और ज़्यादा कम होने लगी हैं। दिस अफेक्ट्स क्रॉप्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड इवन वाटर सप्लाई। टू फिक्स दिस, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है क्रॉप्स को भी, स्मॉल फैक्ट्रीज को भी और इवन वाटर सप्लाई को भी। तो हम इससे कैसे फिक्स कर सकते हैं? हम इसको, हमें क्लीन एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि विंड और सोलर एनर्जीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाना चाहिए, हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए। लिव इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स नेचर, हमें ऐसे तरीक़ों से रहना चाहिए जो कि नेचर को प्रोटेक्ट करे। फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स वगैरह लगाने चाहिए, ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू हेल्प, बट इट्स नॉट ऑलवेज ईजी बिकॉज पीपल ऑल्सो वांट मोर फैक्ट्रीज, जॉब्स एंड कन्वर्ट्स। वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है पूरी दुनिया में ताकि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी अर्थ की जनरेशन खतरे में आ सकती है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं, क्योंकि हर किसी को जॉब चाहिए, हर किसी को कम्फर्ट चाहिए और हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज चाहिए इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी। Now we will move to the exercise portion, okay. So first we have tick the correct options, okay. So let's start. First we have, which of these places in India has an alpine climate, okay. So alpine climate we already studied, Sri Lanka have, okay. Which climate type it found in the Thar desert? So Thar desert is dry and arid areas, okay. So the correct option is C. Which direction do monsoon winds come from in summer? So monsoon winds come from basically southward directions, okay. So we have, this is the right answer. What is the eye of the cyclone? Eye of the cyclone is center with calm weather, clear. Which gas contributes most to the global warming? That is carbon dioxide, okay. Weather refers to dash we experience daily or uneven hourly. So weather experience to atmospheric conditions, okay.
Dash is the pattern of weather an area or a region experiences over a long period of time, several decades at least. Okay, this is climate they are talking about. Dash changes with the season. So what changes with the season? Obviously weather changes with the season, and climate is for long duration of time. Okay. Next we have the dash monsoon brings rainfall to most of India. So that is monsoon brings rainfall. Okay. But they are asking the dash monsoon brings rainfall. So we have southwest rainfall. Okay, they are asking direction maybe. The dash season is very important in India. Which season? Monsoon, because they bring rainfall, and for rainfall, a lot of people are dependent in India. Next, we have true the false. Climate is the same as weather. Climate is same as weather. This is the myth. No, climate and weather is so different. We have studied a whole chapter on the basis of this. So this is absolutely false. India experiences only one type of climate. Absolutely not. India experiences very different kinds of climates. Summer, hot, cold, winter, summer, and all. Okay. High altitude places are cooler. True. High altitude places are cooler. Mumbai has extreme temperate ranges. This is wrong. False. The Himalaya is influence India's climate. Definitely, because of Himalayas, we are able to protect from high blowing winds. Next, we have match the following. Monsoon winds are, these are seasonal winds. Latitudes are distance from the equator. Floods are excess water. Forest fires is because of dry climate and heat. And altitude is cooler climate. Okay, because as we go high, the climates become cooler. Now we have short the following questions. Let's solve this quickly. Which wind system brings rainfall to India? That is monsoon. I will not waste much time in writing. Okay, I'm just telling you already most of the questions. And why do coastal areas have moderate temperatures? These are very short, so I'm writing answers. And how do coastal areas most of the time? Because they are near the sea. Okay, because they are near sea breeze. Okay. What is microclimate? Okay, so micro means small. Okay, so microclimate is what? Small area they are talking about. Okay, or restricted area. Okay, the small or restricted area where particular climate is changing at on a short ranges. Okay, so for this we have microclimates. Okay. Next we have what is atmospheric pressure. So atmospheric pressure is heavy air at a particular column of area. Okay, where you are feeling that winds are exerting pressure on that. Okay, you can feel this like temperature and other factors. Okay, what is a cyclone? Cyclone is a disaster which is high blowing winds having, this is inner winds are blowing on that, and this is heavy rainfall. This is you can say heavy winds are blowing in this case, and so many life become in danger. Next we have how do monsoon winds affect the Indian climate. So monsoon winds affect the Indian climate because if it is going sea to land, then the temperature is summer, and if it is going land to sea, then the temperature is cooler, that is winter. Okay. Okay, so this is how they are affecting the climate. What is the importance of Himalayas influencing India's temperature? Okay, so this is our India. Okay, so these mountains are present which are helping us with the high blowing winds which are coming directly to India and helping us to make the climate, making the climate balanced. Otherwise, our India do not able to face those high winds and can really affect the lives of those areas. What are characteristics of an equal climate? So equal climates have high temperature, you can write. High temperature, okay.
This is one factor, high temperature and high rainfall. Here, what is the difference between summer and winter monsoon? So difference between summer and winter monsoon is what that you can write the same answer as I wrote in first question, that if it's going sea to land in summer, and for winter when wind is blowing from land to sea. What steps can be taken to reduce climate related disasters? So we can do water management. Okay, let me write the answer. What we can do? We can do water management. Okay, good instruments to predict weather. Okay, what else you can write? You can write better infrastructure. Okay, so all these some additional points also you can write in this answer. Clear? Next we have log the following questions. Explain the factors that influence the climate of India. So that is nothing but monsoon. Not directly you could write this. So what actually the factors that affect the climates of India? That is so many factors like latitude. Okay, latitude, altitude, distance from the sea. We also discussed about this. We are so high from the sea that the climate is cooler. Okay, pressure and winds. Okay, so all these 5 factors depend on the factors of the climate of India. Describe the role of monsoon in India's agriculture and economy. So monsoon is definitely very important. I can write 3-4 pages on these questions. Okay, because India is a country where a large number of population depends on agriculture. Okay, and agriculture is directly depends on the weather conditions. Okay, that how weather is, that's how their crops will grow now, and how the agriculture conditions will good, economy will directly affect that. Okay, so definitely weather should be good, and role of monsoon is really important. Next we have what are Indian festivals often linked to seasons. So India is a agro India India has a tradition that they have made so many festivals based on their weather conditions. Okay, like Basant Panchami and all. So these are the festivals which depend on the weathers. Okay, how does climate change impact India? So climate change definitely impact India. Yeah, if the climate will be so hot, like people's living, yes, for that. Okay, so you can write a lot of things about it, how climate directly affects the India. What are the causes and effects of floods in India? So because of floods, which is the excess of water, we also did batch the following questions on this. So causes, what you can write in causes, let me do this question. So it causes, what you can write, so in portion of causes you can write uh, you can write in the causes that which affects the floods. Okay, so floods are happening due to poor poor weather prediction, poor weather prediction. Okay, low infrastructure, you can write low water management. Okay, so many things you can write in this also. And if we talk about effects, so what you can write, okay, so causes that due to these things flood is happening. Okay, so what are the effects due to this on the lives of people? So on the lives of people, they will face a lot of things. Okay, economy will harm, you can write economy will harm. Okay, loss of people live.
Okay, so all these things you can write in this answer. Okay, you can add some additional points. We have studied a whole chapter on this topic. Okay, so here our this all the important things complete related to this chapter. I hope this chapter is clear to you. Thank you.